بھی کیا ہوا ہے کہ کوئی یعنی جن کو اجازت دے رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو مناظر ہیں، جو مبلغین ہیں، کہ وہ اگر الزام کے رنگ میں کہتے ہیں ان کو اس طریقے سے تو وہ ٹھیک ہے، عام بندہ کوئی نہ اس طریقے سے کہے، نہ اس کو تسلیم کرے۔ اور الزام میں بھی اس کا مطلب یہ جو ہوگا بھائی انہوں نے تین باتیں کی ہیں بھائی، عامر بھائی تین باتیں انہوں نے کی ہیں، تینوں کو دو کو چھوڑ کے آپ ایک پہ بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے اسی پہ بحث کرنی ہے نا، لیکن انہوں نے تین باتیں کی ہیں نا۔ کون کون سی؟ تین، ایک یہ ہے فَإِنْ أَرَادَ بِالْبَنْوَ الْمَعْنِ الْمِجَازِ، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجازی رنگ میں وہ اپنے آپ کو بیٹا کہہ رہا ہے، آگے انہوں نے مثال دی وَهُوَ قَوْنَ النَّاسِ مُحْتَاجِينَ مُفْتَقِرِينَ إِلَى اللَّهِ، یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ یہ ایک بات، تب بھی کوئی بات نہیں۔ آگے وَاسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي غَرَضٍ مَشْرُوعٍ، یا کوئی خاص مسئلے کے تحت ان عبارت کو استعمال کر رہا ہے، یہ دو ہو گئے۔ آگے انہوں نے مثال دی کَالرَّدِّ عَلَى النِّسَارَةِ۔ آسکانی بھائی مجھے اس کا لنک دیں گے آپ، یہ کس جگہ پہ فتویٰ ہے؟ میں آپ کو ابھی میں آپ کو بالکل نیٹ پہ موجود ہے، میں ابھی آپ کو کیمرہ کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ مجھے اس کا ان باکس کر سکتے ہیں لنک؟ آپ لکھیں حکم اطلاق لفظ نحن ابناء اللہ، آ جائے گا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ حکم اطلاق لفظ نحن ابناء اللہ، آ جائے گا، خود آ جائے گا۔ اب یہ انہوں نے کیا بات کی؟ ایک تو یہ بات کی کہ مجازی رنگ میں استعمال کر رہا ہے، یعنی محتاج ہیں ہم سب، اللہ کے گھر کے در کے سوالی ہیں، فقیر ہیں۔ وَاسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي غَرَضٍ مَشْرُوعٍ، اور کوئی خاص مسئلے کی تحت ان الفاظوں کو استعمال کر رہا ہے۔ آگے کَالرَّدِّ عَلَى النِّسَارَةِ، مثال کے طور پر وہ نصارہ کو رد کر رہا ہے۔ تین باتیں انہوں نے کی، صرف اور صرف نصارہ کے رد میں بات نہیں کی انہوں نے، یہ تو ایک مثال ہے انہوں نے دی۔ اگر مجازی رنگ میں وہ کہتے ہیں مجازی رنگ میں محتاج ہیں ہم، کہتے ہوئے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، ان معنوں میں اگر وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں تو غلط ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ غلط کہیں، غلط کہیں، یہ تو یہ ایک الگ بات ہو جائے گی نا۔ کیونکہ بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں، محتاج کے لیے محتاج الفاظ موجود ہے، عربی میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے۔ ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے، اس کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، ایک نہیں۔ اپنے احتیاج کو بیان کرنے کے لیے کیا الفاظ کم پڑ گئے ہیں کہ بیٹا کہنا ہے؟ عامر بھائی 30 سیکنڈ دے دے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 30 سیکنڈ صرف دے دے مجھے۔ کریں بات۔ اچھا، بات ایسے ہے کہ میں نے پاکستان میں بھی جو ہے نا علماء سے رابطہ کیا اس فتویٰ کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی جو مجھے یہ بات سمجھائی ہے نا، اس میں وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو مجازی معنی مراد لیا جائے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج اور اس کے فقیر ہیں۔ اس کے بعد اس فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس عبارت کو کسی مشروع اور جائز غرض میں استعمال کیا جائے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ جو عبارت ہے کہ ہم محتاج ہیں یا فقیر ہیں اللہ کے، اس عبارت کو کسی مشروع کام کے لیے استعمال کیا جائے، اور پھر اس مشروع کام کو بھی بتایا گیا ہے کہ وہ مشروع کام کیا ہے۔ وہ مشروع کام یہ ہے کہ عیسائیوں کا رد کیا جائے۔ میر صاحب آپ وہ الفاظ پڑھیں گے کیا ہیں؟ آؤ ہے یا واؤ ہے، کیا ہے؟ ضیاء بھائی وہ پرابلم وہی ہے کہ میرے پاس وہ نا اردو والا فتویٰ ہے، اردو ویب سائٹ ہے میرے پاس، ہے وہی مطلب سائٹ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں کہ مستند ہے لیکن اردو ہے۔ میرے پاس وہ مجھے عربی کی مل رہی ہے۔ پیر آسکانی بھائی سے کہیں مجھے نا یہ عامر بھائی، پیر آسکانی بھائی سے واٹس ایپ پہ لنک دیں۔ ہاں مجھے بھیج دیں، میں واٹس ایپ پہ فارورڈ۔ ضیاء بھائی میں بھیجتا ہوں آپ کو، لنک بھی بھیج دیتا ہوں، میں میرے پاس ہے وہ، اور اس میں جو ابھی، ہاں جی میں بھیجتا ہوں۔ اور جو میر صاحب نے جو بات کی ہے نا یہاں پر پورے فتوے میں، اس عبارت کو بطور عقیدہ پیش کرنے کی کہیں بات نہیں ہوئی ہے۔
मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इस इबारत में ये लिखा हुआ है कि इसमें मानी बताए गए हैं मजाजी, वो ये कि इस मानी में लिया जाए कि हम खुदा के मुहताज और फकीर हैं। और इस जुमले को उन्होंने लिखा हुआ है इस फतवे में कि ये जुमला किसी शरई गर्ज में इस्तेमाल किया जाए, और वो शरई गर्ज भी बता दी गई है। वो शरई गर्ज ये है कि ईसाइयों का रद्द हम करते हैं, क्रिश्चियन का। इल्जामी जवाब, बतौर इल्जामी जवाब, बिल्कुल। लेकिन बतौर अकीदा कहीं पर भी इसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे मजाजी रंग हो चाहे कोई भी रंग हो, उसमें बतौर अकीदा नहीं पेश किया जा सकता। ये पूरे फतवे के अंदर है नहीं। इसी बात, एक मिनट आप रुके, जरा बात करने दें। उसके बाद इसी इबारत में जो आगे लिखा हुआ है ना, ये अल्फाज भी लिखे हुए हैं, और इस जुमले को किसी और गर्ज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी इसी फतवे में लिखा हुआ है। साफ लिखा, दोनों बातें साफ लिखी हुई है कि ये जो मानी निकाला गया है ना इसमें मजाजी, ये सिर्फ और सिर्फ इस गर्ज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो मशरू गर्ज है, और वो गर्ज है ईसाइयों का रद्द। इसके अलावा इस जुमले को हम कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी इसी फतवे में लिखा हुआ है। अच्छा आमिर भाई, अब मुझे जो इसमें समझ आई है ना, ये जो पीर साहब ने कहा ना कि यहाँ पे 3 बातें हुई हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे सिर्फ एक बात हुई है, और उस एक बात की आगे मिसाल दी गई है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये समझ आई है, ये कोई 3 बातें नहीं हुई। और उस एक बात में भी वही जो डॉक्टर जाकिर नाइक उस दिन बात कर रहे थे ना इल्जामी तौर पर, वही बात है इसमें। बिल्कुल ये वही बात है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने की है, बिल्कुल सेम वही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है, सिर्फ एक बात है। जी शुक्रिया। नहीं, मैं समझ गया हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी इस तरह के काम में कि जब कोई नसारा कहते हों कि हमारी देखें बाइबल, हम तो इस पे बिलीव करते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, तो कोई बंदा कहता है कि हाँ हाँ वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर इन मानों में लिखा हो, तो अगर इन मानों में लिखा हुआ है तो उसमें तो कोई इतनी कबाहत नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह का मोहताज बंदा साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने बयान किए, ना कि अगर ये अल्लाह का कलाम है, ना कि इसलिए किए हैं कि कोई उसका बेटा हो सकता है किसी भी रंग में, इस्तियारे के रंग में, मुजाज के रंग, बेटा तो हो ही नहीं सकता। ये है उसका रद्द, इल्जामी रंग में करना। जो कुछ अस्कानी साहब, आपने 3 बातें जो बयान की हैं वो जरा दोहरा दें प्लीज। मैं दोहरा देते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड कर लें, मुझे बात कर लें। जब भी मैं बात करता हूँ मेरी बात में कोई ना कोई मसला। आप बात कीजिए, उसके बाद मैं दोहरा देता हूँ। बात कीजिए। बात ये है कि ये तो है फी रद्दल नसारा, जिस तरह उन्होंने कहा है एक मशरू मानी में, लेकिन जो मिर्जा साहब ने किताब में लिखा हुआ है वो ये है कि खुदा बेटों से पाक है, लेकिन ये बात खुदा ने मुझे इस्तियारा के रंग में कही है, इस्तियारे के रंग में कही है। और क्यों कही है? ताकि नादान ईसाइयों की आंखें खुलें कि इस सुन्नत में भी एक है जो उससे बढ़कर है। लो जी, जिसको तुम मानते हो या जो तुम अकीदा रखते हो, उससे बढ़कर एक बंदा है, उसकी शान में ये लफ्ज कहे गए। ये तो बतौर अकीदा के बयान किया जा रहा है, ना कि फी रद्दल नसारा बयान किया जा रहा है। तो इसको कोई किसी किस्म की गुंजाइश दी ही नहीं जा सकती, इसके लिए ये फतवा पेश ही नहीं किया जा सकता। ये तो वो बंदा अपना अकीदा और अपना इल्हाम पेश कर रहा है कि मुझे खुदा ने उसका मकाम ऊंचा करने के लिए, मेरा मकाम ऊंचा करने के लिए ये इल्हाम किया है। अच्छा, ईसाइयत के रद्द में ही बयान किया है ना मिर्जा साहब। ज़िया भाई ज़िया भाई मैंने लिंक उधर ग्रुप में लगाया है, और उसको अरबी का ऑप्शन भी है उसमें, आप अरबी में भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वो ग्रुप मैंने लगा दिया, ग्रुप में चेक करें। वो जो गूगल ट्रांसलेटर है ना, वो अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करता है, तो हमने तो असल अल्फाज फतवे के पढ़ने ना जो उनके हैं, वो उसमें अल्फाज में नहीं, उसी लिंक के अंदर ऑप्शन है वो, अगर आपको अरबी में उसका जवाब चाहिए तो वो उसी में कर देता है ट्रांसफर, उसी लिंक में है, चेक करें। अच्छा चलो ठीक। हाँ, मुख्तलिफ ज़बानों में आपको पर्सनल में लिंक भेजा है मैंने, मुख्तलिफ ज़बानों में वो फतवा होगा कि उर्दू में ये फतवा है, अरबी में लेना है तो ये इन अल्फाज से है। मतलब अल्फाज के चुनाव में उससे भी कमी बेशी हो सकती है, मुफ्तियान से भी कमी बेशी हो सकती आमिर है। भाई, आप जाकिर नाइक साहब का मनाजरा देखेंगे ना, तो वो भी अक्सर बात करते करते फादर एंड सन, फादर सन, फादर सन। लाल भाई आप बहुत लो आवाज बात कर, लो में बात कर रहे हैं। एक मिनट जी, इसमें जो है मैं जो असल में देखना चाहता था कि यहाँ पे जो इस्तामल के अल्फाज हैं इसके साथ वाव है या औ है, क्योंकि औ अगर होता तो इसका मतलब ये होता कि इस तरीके से भी कहा जा सकता है या इस तरीके से भी कहा जा सकता है, लेकिन वस्तामल इसका मतलब है कि जो पीछे बात उन्होंने बयान की है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये बात इस गरज से अगर इस्तेमाल की जाए तो बात वाज़ी हो गई। यही मैं अरबी में देखना चाहता था। है सिर्फ इतना।
अगर वो इस रद में बयान की जाए और इस तरह से बयान की जाए, फिर रद में भी, रद करते हुए भी ये ना हो कि आप अपना उसको बयान करना शुरू कर दें कि मेरा ये कीदा कि मैं भी खुदा का बेटा हूँ। नहीं, इस नसारा का रद्द करना है तो उनको समझाने के लिए, भाई देखिए आपकी बाइबल में ये कहा गया है कि जो अल्लाह का अतात गुजार बंदा है, जो अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने वाला है, वो उसका बेटा कहा गया, वहां पर उसका बेटा कहा गया, ना कि सुलभी बेटा कहा गया जो आप मानते हैं। ये समझाने के लिए। ये देखें और अतात जहाँ गुजार पे बंदा कौन सा है? आमर भाई उन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि और इस इबारत को किसी मशरू और जायज़ गर्ज में इस्तेमाल किया, मसलन ईसाइयों के रद में जो ये कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो इसका इल्ज़ाम ईसाइयों पर करे ताकि इनका अक़ीदा बातिल कर सके, लेकिन इसका इस्तेमाल इनके अलावा किसी और के साथ ना करे, क्योंकि इससे इसके लिए बातिल मानी का अखज़ और इल्तबास का ख़तरा है। क्योंकि ईसाइयों के ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ अक़ीदा को बातिल करने के लिए इन इबारतों से जो कि इनकी किताब मुक़द्दस में हैं, जिनमें ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों के लिए भी बेटे के लफ्ज़ साबित हैं और ये बनु दूसरों के लिए भी साबित है, इसके साथ इन्हें लाजवाब करना कि इंजील में हर इबारत के अंदर बेटे का मानी हकीकी नहीं, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ इनका गुमान है। ये असल बात वही है जो हम समझ रहे हैं। चलो शुक्र अल्लाह। उन्होंने वजाहत की। मैं असल में सबसे छोटा हूँ ना, तो मेरी बात कोई सुनता नहीं है, कुछ समझती है। मैं तो ये 3-4 दिन से रो रहा हूँ कि इस फतवे में ये बात लिखी हुई है। आमर भाई को भी मैंने पर्सनल में भेजा ये फतवा कि उसमें ये बात लिखी हुई है। वो पीर साहब को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी गलती है इसमें, उनको बात समझनी चाहिए। ये तो बिल्कुल इश्काल नहीं है, लेकिन आप एक आखिरी बात कर रहे हैं, बाकी बातें आप नहीं कर रहे। तो मैं तो मुकम्मल बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ ना ईसाइयों की बात हो रही है, ना उन्होंने खुद बहुत सारी और मिसालें दी ईसाइयों के, लंबी चौड़ी बात है। मैंने कहा था 2 जो है शायद पेज हो सकते हैं, लेकिन जो जौहर है मैंने आपके सामने रख दिया। सवाल सिर्फ इतना है कि मुसलमान कोई कह रहा है, वो तो मुसलमानों के बारे में सवाल है, कोई मुसलमान भाई कह रहा है, ईसाइयों के बारे में सवाल नहीं है। इस अकीदे को रद्द करने की बात नहीं हो रही। पीर साहब जी, मैं पहले आपसे ना माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि आप बड़े हैं मेरे। तो यहाँ पे जो सवाल किया जा रहा है ना, मुसलमान, ये सवाल मुसलमान ने किया है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो क्रिश्चियन है भाई। डॉक्टर जाकिर का सवाल तो ये नहीं है ना, ये जो किसी मुनाजर के लिए ही हुक्म है ना, ये फतवा ही मुनाजर के लिए मुसलमानों से मुतल्लक है, जवाब भी मुसलमानों से मुतल्लक है कि अगर मुसलमानों में से कोई कहे तो इस शर्त के साथ, इस कंडीशन में अगर कहता है तो जायज़ है। हाँ, किस कौन से कंडीशन में? जिस तरह अहमद दिदात साहब जैसे अहमद दिदात साहब करते हुए, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा था, उस दिन उनकी वीडियो सुनाई थी, उन्होंने कहा था कि आपकी कुतुब में लिखा हुआ है, फतवे में क्या लिखा हुआ है? बेटे हैं अल्लाह के प्यारे, आम इंसानों को भी अल्लाह का बेटा कहा गया है, तो फतवे में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह का बेटा बनता हूँ। भजन फतवे में क्या लिखा हुआ है? फतवे में ये लिखा हुआ है, सुने पीर साहब, फतवे में ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर मुनाजरा करें ईसाइयों के साथ तो वो ये बात कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है भाई। ऐसे ही लिखा भाई, जो लिखा हुआ है को बयान तो करने दे, वो जो लिखा हुआ है उसको बयान करो ना। आप उसको गलत कहो, सब कहो, जो आप आखिरी बात करें वो बात भी दुरुस्त है, वो लिखा हुआ है, लेकिन 2 बातें आप बता नहीं रहे। 1 मिनट दे दें। उस फतवे में जो आपने पढ़ा और 4-5 दफा इस ब्रॉड पे पढ़ा जा चुका है, आप कह रहे हैं कि उसमें 3 बातें हैं और मैं कह रहा हूं कि वो 3 बातें एक ही हैं। असल में बातें 2 हुई हैं और एक तसलसल के साथ हुई हैं, और तीसरी जो बात जो आप करें वो मिसाल दी गई है उन 2 बातों की। ठीक है, अब अगली बात सुने। डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दिदात की इतने मुनाजरे मैंने देखे हैं कि वो जब ईसाइयों से बात करते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि फादर, सन एंड होली स्पिरिट, यही उनका अकीदा है ईसाइयों का। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दिदात बात करते हुए कहते हैं कि द सन, जिसे आप मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, he put his 4 heads on the ground like Muslims। अब डॉक्टर जाकिर नाइक सन कह रहे हैं कि भाई वो जो बेटा था वो तो अपना माथा ज़मीन पे रखता था, ज़मीन पे बिछाता था नमाज पढ़ने के लिए। फिर एक और मिसाल दी
کہ ایک دفعہ ان کا ایک پیروکار انہیں کہتا ہے کہ ماسٹر یو آر اے گڈ ٹیچر، تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں دا سن سیڈ، مطلب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سن بیٹے نے کہا کہ نو آئی ایم ناٹ اے گڈ ٹیچر، دا اونلی گڈ ٹیچر از فادر، مطلب اللہ جو باپ ہے وہی۔ اب کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان کے باپ ہیں؟ اللہ تعالیٰ باپ تو نہیں حضرت عیسیٰ کا، لیکن یہاں پہ یہی بات ہے کہ جب عیسائیوں سے آپ بات کریں گے تو آپ انہیں یہ بات بتائیں کہ حضرت عیسیٰ جس کو آپ خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ ایک عاجز تھے، وہ اللہ کے سامنے انکسار اور عزت کے ساتھ بات کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ اسی طرح کے اللہ کے محتاج تھے جس طرح کے ہم انسان محتاج ہیں۔ یہ بات ہے، وہ ایک ہی بات ہے، تین باتیں نہیں ہیں، آپ اس کو تین جز بنا رہے ہیں۔ میری نظر میں وہ ایک ہی بات ہے۔ جی اچھی بات، آپ کے نظر میں ایک ہوگا لیکن میرے نظر میں ایک نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں وہ فتویٰ پڑھ لیتا ہوں، آپ اس کو ایک بنا کے دکھا دیں مجھے۔ انہوں نے کہا فَإِنْ أَرَادَ بِالْبَنْوَى الْمَعْنِي الْمِجَازِ، ترجمہ کیجیے اب بلال بھائی، ترجمہ کیجیے اس کا۔ نہیں پیر صاحب آپ مجازی معنوں میں اگر وہ بیٹا کہتے ہیں، اگر یہ ارادہ ہے کہ مجازی معنوں میں وہ بیٹا کہنا چاہتے ہیں، فَإِنْ أَرَادَ، اگر اس کا ارادہ یہ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے مجازی معنوں میں۔ آگے پھر انہوں نے کہا وَهُوَ كَوْنُ النَّاسِ مُحْتَاجِينَ مُفْتَقِرِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، یعنی لوگ محتاج ہیں، فقیر ہیں اللہ کے جل وعلا۔ آگے وَاسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي غَرَضٍ مَشْرُوعٍ، اور استعمال کر رہا ہے اس عبارت کو، یا استعمال کر رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے، دونوں۔ یا نہیں ہے، یا نہیں ہے، یا پیر صاحب یہی وہ مسئلہ ہے، یا بھئی نہیں اور ہے، لے لو، اور لے لو، اور ہے تو آپ عربی کو جو اصل عربی کے لفظ ہیں وہ بتائیں نا آپ۔ او تو میں بتا تو رہا ہوں، میں بتا تو رہا ہوں، ہے، او استعمال نہیں ہے۔ میں او تو کہہ نہیں رہا ہوں۔ ہاں جی، وَاسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ہاں فِي جی، غَرَضٍ مَشْرُوعٍ، مجازی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں اور اس مشروع طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ دو ہو گئی باتیں یا نہیں ہو گئیں؟ دو ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ایک ہی ہے، دو ہو گئی۔ ایک ایک ہے پیر صاحب ہے نا، کہ کوئی ان معنوں میں لے اور اس عبارت کو وہ استعمال کرے نصارہ کے رد میں، اور اس عبارت کو آگے بھی پڑھیں، یہاں پہ ہے مع عدم التسلیم، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہاں جی، لاسٹ میں آ کر یہ ہوگی۔ ساتھ شرط ہے ان کی۔ اب سن لیجئے، ایک ایک لفظ سن لیجئے۔ جی۔ فَإِنْ أَرَادَ بِالْبَنْوَى الْمَعْنِي الْمِجَازِ، اگر اس کا ارادہ بیٹے سے مجازی معنی ہیں، وَهُوَ كَوْنُ النَّاسِ مُحْتَاجِينَ مُفْتَقِرِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، یہ ہو گئے ایک بات کہ لوگ محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، مجازی معنوں میں یہ لے رہا ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ آگے وَاسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي غَرَضٍ مَشْرُوعٍ، اور استعمال کرتا ہے یہ بنوا بیٹے کو کوئی خاص، کوئی ایک منٹ، کوئی ایک منٹ واہ، اور استعمال کر رہا ہے، ایک تو بات ہو گئی مجازی میں اس نے لے لیا، اور پھر یہ ہے کہ استعمال کر رہا ہے کوئی خاص مسئلے کے تحت۔ نہیں، ہاں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات، یہ فاضل عبارت کس اسی کون کی سی عبارت تفصیل ہے؟ ہے، بات جوڑی ہوئی ہے، اسی کی تفصیل ہے۔ یہ اس کی شرط ہے، ہاں، یہ مشروط پچھلی عبارت کی شرط ہے یہ۔ لا حول ولا قوت الا کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بات ہے، یہ بھائی جان آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ کیجئے، آپ ایسے ہی جو ہے بات کیجئے نا۔ لفظ دیکھیں، ایک عبارت ختم ہو گئی، مجازی معنوں کا مطلب انہوں نے بتا دیا کہ محتاج اور فقیر اپنے آپ کو سمجھتا ہے اللہ کا، ایک تو یہ لے رہا ہے اس طرح سے۔ وَاسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، یہی عبارت بنوا بیٹا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس عبارت کو، فی غرض مشروع، کوئی خاص مسئلے کے تحت اس کو حل کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ ہو گیا دو۔ آگے کر رد علی النصارى، کر رد مثال کے طور پر نصارہ کو رد کر رہا ہے، یہ ہو گیا تین۔ اور بھی مشروع مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ مثال ہے، یہ تیسری تو مثال ہے، تیسری تو بات ہی نہیں ہے، تیسری مثال تو کیسے؟ پچھلے کی تو وہی مثال دے رہا ہے نا، وہ سمجھا رہا ہے کہ یا مجاز، سنیں یا مجازی معنوں میں لے رہا ہے یا کوئی خاص غرض کے لیے استعمال کر رہا ہے، مثال کے طور پر نصارہ کو رد کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے وہ۔
सब यहाँ पे صاحب یہاں کا لفظ نہیں موجود نا، یہی تو مسئلہ ہے۔ ایک منٹ چلے ٹھیک صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ اچھا پیر صاحب، یہ جو مجازی معنی میں لیا جاتا ہے فقیر یا محتاج، جی آیا یہ قرآن حدیث میں بھی یہ لفظ لیا گیا ہے یا صرف اور صرف کرسچن کی کتابوں میں لیا گیا ہے یہ معنی؟ یہ کرسچن کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک ضعیف حدیث بھی ہے۔ ضعیف حدیث سے تو ہم کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے نا۔ نہیں، ضعیف حدیث میں بنا اللہ نہیں ہے، عیال اللہ ہے۔ عیال کا مطلب ابن نہیں ہوتا، عیال کا مطلب ضعیف بچے ہوتے حدیث ہیں، میں بھی ابن کا لفظ نہیں ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا، بچے تو عیال ہی ہوتا ہے، بیٹا ہی ہوتا ہے۔ نہیں جناب، عیال کہتے ہیں جو آپ کے زیر کفالت ہوں، ان کو اہل کہتے ہیں۔ جو بیٹے بیٹیاں گھر والے وہ اہل ہوتے ہیں۔ عیال ان کو کہتے ہیں جو آپ کی زیر کفالت ہوں، ان چلے کے لیے اچھی بات شرط ہے۔ نہیں ہے کہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں یا سگے ہوں۔ اچھا پھر یہ جو یہ کہہ رہا ہے، تو اگر وہ تو یہ کہہ رہا ہے، بات سنیے، سوال میں یہ ہے کہ ما حکم من قال من المسلمین نحن نؤمن ان کلنا ابناء اللہ، آگے مستشہدن بالحدیث الضعیف جی الخلق کلہم عیال اللہ، بالکل بالکل اس حدیث سے وہ استدلال لے رہا ہے، تو پھر وہ بیٹا تو نہیں کہہ رہا ہے، زیر وہ غلط کفالت۔ لے رہا ہے نا۔ وہ سوال جس نے کیا ہے وہ بھی یہی سوال ہے کہ اگر کوئی اس حدیث سے استدلال کر کے خود کو اللہ کا بیٹا کہے تو اسی کا تو وہ رد کر رہے ہیں۔ عیال کا مطلب ہوتا ہے بچہ، زیار رسول بھائی میں نے بچے، یہاں ہوتا ہوگا، بہت سارے بچے۔ یہاں نہیں ہوتا۔ اچھا زیار نہیں، رسول آپ تو عربی نہیں ہے نا، عربوں کے یہاں ہوتا ہے۔ اچھا ایک منٹ جو میں نے بات کی ہے نا، بات وہی ہے کہ یہ جو مجازی معنی میں لیا جاتا ہے معنی، یہ ظاہر ہے کہ کرسچنز کی کتب میں، ہمارے حدیث میں یا قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہاں سے صاف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو مثال بھی دی جا رہی ہے اس بھائی جان میری بات تو پوری ہونے دیجئے۔ انہوں نے جو بات کی، تین باتیں میں نے آپ کو بتا دی، آخر میں انہوں نے جو نصیحت کی وہ یہ ہے کہ یہ استعمال نہ ہو، کیونکہ ان کے غلط سوء ظن بھی پیدا ہوتا ہے، باطل جو ہے ان کے معنی بھی نکل سکتے ہیں، اس کو استعمال سے پرہیز کر لینا چاہیے، لیکن کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، یہ ہے خلاصہ۔ چلے بہرحال پیر صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا، ہم سب کا بھی پوائنٹ آ گیا، میں یہ مناظرہ جیت گیا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ جیت گئے۔ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ الفاظ تو نہیں ہے نا وہاں پر لکھے ہوئے، یہ تو بار بار آپ 3 بار استعمال کیا ہے اپنے پاس سے۔ فلا حرج آیا ہوا ہے، فلا حرج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی فلا انہوں نے نہیں حرج کہا- کس کے لیے ہے؟ اصل بنیاد ہی یہ ہے کہ کس کے لیے حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے من قال من المسلمین نحن نؤمن ان کلنا ابناء اللہ، اس کے لیے ہے۔ حرج علیہ فی الزام النصارى، الزام پڑھے تو کیا لکھا ہوا ہے کہ حرج نہیں ہے اگر نصارہ کو الزامی طور پہ کہا جائے۔ فرا حرج علیہ اس میں 3 باتوں میں ہے، وہ کہہ رہا ہے مجازی رنگ میں، یا کوئی خاص مسئلے کے تحت کہہ رہا ہے، یا رد کر رہا ہے نصارہ کو۔ یہی غلط ہے، یہی غلطی ہے، یہی غلطی پھر ہے۔ وہ آپ یہی غلطی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 شرطیں، پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ الزامی طور پر نصارہ کے رد میں الزامی طور پہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، پھر یہ انہوں نے شرط کیوں لگا دی بیچ میں اگر وہ پیچھے 3 باتیں ہیں تو یہ کیوں کہا پھر انہوں اکیلا نے لکھتے نا کہ فَإِنْ فَلَا أَرَادَ حَرَجَ بِالْبَنْ عَلَيْهِ۔ وَالْمَعْنِ الْمَجَازِ، بھجن انہوں نے تفصیل سے نہیں بات کی پھر نا، انہوں نے آگے یہ شرط انہوں نے کیوں لگائی تفصیل ہے سے بات کی۔ کہ فی الزام النصارى، کیا؟ پھر اکیلا لکھتے کہ فلا حرج ہاں علیہ۔ 3 باتیں انہوں نے کی نہ، وہ تینوں تو باتوں 3 کی باتوں میں سے وضاحت پہ ایک فرا پہ انہوں حرجہ نے کیوں لگ رہے کہا ہیں کہ نا، اس پہ حرج نہیں ہے؟ نہیں 3 ایک پہ باتوں میں نہیں سے کہا، ایک 3 پر ہی باتیں کیوں کر کے کہا؟ پھر فرا حرجہ،
फला भाई, हरज तीनों पर अकेला नहीं है ना, कहा, आप कह अकेला रहे के हैं ऊपर हम समझते हैं कि तीनों पे है। भाई ठीक है तीनों पर है ना, तीन तीनों बातें हैं ही नहीं, ये एक ही बा- बात है, उसकी तीनों यार मशरूत है, तीन बातें हैं ही नहीं, आगे गलत बात समझ रहे भी है हैं। आमिर भाई इतनी सी कि बात अगर है। ये यही मैं तीन पहले अलग अलग बोला। बातें होती और सब पे कहा होता हर्ज नहीं, तो फिर अकेला होता फला हरज अलई, फिर आगे ये साथ में शर्त ना होती फी इल्जाम इन नसारा, क्योंकि जहां उन्होंने कहा है कि हर्ज नहीं, वहां साथ उन्होंने फी इल्जाम इन नसारा लिखा है। अगर तीनों पे हर्ज नहीं तो एक के बारे में क्यों कहा कि इस पे हर्ज नहीं है? इसका मतलब बाकी दो पे है। तो उसके बारे में क्यों उसके बारे में फिर क्यों जवाब नहीं दिया जो ये कह रहा कि मिजाजी रंग में मैं फकीर हूं? उसके बारे में क्या हुक्म लगाया? यही तो आप समझ नहीं रहे, आप इसको तीन बातें कह रहे हैं जो तो आप फला समझाएं। हरज अलई फी इल्जाम इन नसारा के अल्फाज भाईजान, आपके इस आप ये फहम को रद्द कर रहे समझाएं, हैं। आप समझाएं वो शख्स फ़इन अरादा बिलबनवा अलमानी अलमिजाजी, जो मजाजी मानों में अपने आप को बेटा कह रहा है, उसके बारे में क्या हुक्म लगाया? बताओ। पीर साहब मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ समझने में यही गलती हो रही है। अगर ये तीन बातें होती, भाईजान मुझे मेरी तसली कर लो, मैं इस्लाह आपको कर लो। बताता हूँ ना, 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 कर लो। बताता हूँ ना। बात कर रहा है फ़इन अरादा, उन्होंने इस बात से शुरू पीर की, साहब, वो आप वो मुसलमान बात हो गई भाई है का पीछे। ये इरादा है। हमने ये देखना है कि ये एक बात है कि भाई वो तीन वहां बातें से हैं। शुरू है। तो फला भाईजान, हरज आप अलई अपने ही गरज का क्यों कहा मतलब, उन्होंने? भाई ठीक है, आप समझ गए सही, तो मुझे जवाब दीजिए ना। फ़इन अरादा फला बिलबनवा, हरज अलई, अलई ही का क्या मतलब होता है? इसका जरा ग्रामर फ़इन बताएं। अरादा बिलबनवा अलमानी अलमिजाजी, अगर है। उसने इन मानों में अपने आप को बेटा कहा मिजाजी रंग में, फला हरज अलैह। फला इसी हरज अलई, ठीक है? तरह इसी तरह सुन लीजिए, एक मिनट जी, इसी तरह वस्तअमल हाज़िहिल इबारा फी गरद मशरूअ, किसी पीर खास साहब एक मसले मिनट, के एक तहत। मिनट, इसी ये फला तरह हरज अलई ही उन्होंने अलग अलग नहीं लिखा, तो सब लिखने की पर जरूरत एक ही नहीं हुक्म। है ना, वो तरतीब से बात कर रहा है ना। तो आप तरतीब से फिर एक पे, कितनी बातें हैं? अलई ही कितनी बातें? अलई ही एक है या दो है या तीन है? भाई तीनों बातों को भी फला हरज अलैह, नहीं, अलई ही क्या है? ये उस ही पे वाहद है, कोई तस्निया है, मलामत जमा नहीं, है? उस पे कोई मलामत नहीं। अलई ही वाहद है, तस्निया है, जमा। वाहिद का सीगा है, फला तो हरज फिर अलैह। यही हम आपको समझा रहे उस हैं कि बात इंसान ही एक है पीछे। वो उस इंसान के बारे में बात कर रहा है जो इस्तेमाल कर रहा है मिजाजी मानों में या किसी खास मसले के तहत, या इस्तेमाल कर रहा है नसारा को रद्द करने के लिए। एक इंसान की बात कर रहा है जो ये तीनों काम कर रहा है, ये भी कर रहा होगा, वो भी कर रहा होगा, वो भी कर रहा होगा, इस वक्त उस पर कोई हर्ज नहीं, ये बात कर पीर रहा है वो। साहब अगर ये बात है तो उन्होंने ये शर्त फला हरज अलैहि फी इल्जाम हिन नसारा, ये हाँ। शर्त क्यों लगाई है? ये शर्त इसी लगा क्योंकि इस वक्त वो रद्द कर रहा है नसारा को। नहीं, सवाल में तो ये बात है ही नहीं, सवाल में ये बात है ही नहीं कि वो इस वक्त नसारा को रद्द कर रहे हैं। सवाल में तो ये बात भी नहीं है कि नसारा ये कहते हैं, सवाल में ये बात है कि इंसान कोई मुसलमान तो अपने जवाब आप को उन्होंने अपना ये अल्लाह दिया कह रहा है कि सिर्फ एक ये कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर वो कहता है ना तो ना कहा जा सकता है। मिजाजी मानों में वो कह रहा है फरा चलो हरज ठीक है, अलैह। फिर आप पीर साहब का, फिर आपको अब सबको पता चल गया है कि पीर साहब इस बात के कायल हैं कि मैं मजाजी कायल हूं या नहीं अल्लाह हूं का ये एक बेटा अलग कहा बात जा है, जो कहा गया है मैं वो आपके सामने पेश कर नहीं, रहा हूं। आप तो फतवा देने वाले घूम- पर भी इफ्तरा कर रहे हैं। मैं क्या इफ्तरा कर रहा हूं? लाओ किसी को जो अरबी दान हो, जो जानता हो। गल नू खराब ना करो। एक अच्छा फतवा ठीक है, है, एक फतवा है जिन्नू पीर अफगानी भाई साडी नजर के मुताबिक सही समझ के सही बयान नहीं कर रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ। हाँ ठीक है। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। आमर भाई अगर इसके अलावा कुछ भी बात नहीं है तो आप मुझे बता दें भी पीर आसकानी भाई का अपना क्या कीदा है कि मजाजी रंग में खुदा का बेटा कहना दुरुस्त है? आप बता दें, मैं उनसे नहीं पूछता। अपने अकीदे के तौर पर नहीं कह सकते। नहीं, पीर आसकानी भाई का क्या कीदा? मैं आप पे इसका जुम्मा क़यामत वाले दिन आप पे होगा, मैं आपको जो है वो अपना मुजतहिद करार दे के आपसे पूछता हूँ, आप बता दें, मैं उसी को अमल करूँगा। इश्तिहाद। जी आमिर भाई।
चुको भार अपने मोढियां ते। नहीं वो खुद बयान करेंगे, मजाजी तौर पे हो, इश्तिहारे के तौर पे हो। बस खुदा का बेटा मैंने कहना। तो फिर आप मैंने या तो एक अपने नहीं 1000 कंधों पे मरतबा ये बयान वजन किया ना भाई। उठाएं। मैं आपकी बात को ले लूंगा, क़यामत वाले दिन मैंने आपको आगे कर देना है। तो या आप अपने कंधों पे लें या फिर वाजे करें या पीर साहब से पूछ दें कि भई वो क्या उनका अपना कीदा। आमिर साहब को इस बात कहने में क्या लजाजत है? मैं हैरान हूं भाई। आप कह दो कि इस में या सही है या गलत है, बस इतनी सी बात है। बस भाई मैं जो पेश कर रहा हूं, जो मैं समझा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी सी बात है। ये फतवे की बात अब अलग हो गई, अब उसको छोड़ दें फतवा वो। तो और क्या बात है? हम तो फतवे की बात कर रहे हैं। नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका अपना इस बारे में क्या अकीदा है। मेरा अपना अकीदा यह है कि दो फतवे हैं। एक तो आप पेश कर रहे हैं फतवा नहीं, जुबानी फतवा नहीं, फतवा नहीं, पीर साहब, जुबानी फतवा। कलामी। पीर बात साहब तो सुनिए। फतवा नहीं मैंने पूछा। अरे भाई मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा या आपके मतलब का जवाब दूंगा? मैं जो समझता हूं मैं वही जवाब दूंगा ना। जिस चीज से आपका अकीदा वाजे ना हो, फिर हम क्या भाई करें? आपको समझ ना आए कोई मसला नहीं। तिरस्कानी भाई, तिरस्कानी भाई, एक मिनट जी। चुप करें, चुप करें जी। दोनों। जया भाई ये पूछते हैं फतवा, आप अपने फतवे का लफ्ज में इस्तेमाल करें। आप उन फतवों से जो समझे हैं, आपका क्या मौकफ है? आप कह सकते हैं खुद को खुदा का बेटा मुजाजी रंग में, इश्तिहारे के रंग में। जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। अब एक फतवे के बारे में आप जुबानी कलामी बात कर रहे हैं, कोई दलील मेरे सामने नहीं आया। आप कहते हैं कि इस तरह का फतवा है। दूसरा मैं एक फतवा देख रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि मिजाजी रंग में अगर किसी ने कहा या कोई ख़ास मसले के तहत उसने ये कहा या नसारा को रद्द करते हुए कहा, उस पे कुफर का फतवा नहीं लगा सकता। ये आपने समझा है दूसरे फतवे से। अब रिजल्ट जी। आपका क्या है वो बताएं। मेरा रिजल्ट ये है कि मिजाजी रंग में अगर कोई कह रहा है उसको काफिर आप मत कहें, उसको समझाएं कि ये इस्तेमाल मत करो, गलत है, ये गलत है। आपका फहम है ना, ये उस फतवे से निकलती है बात, और ना आप दुरुस्त बात करते हैं। ठीक है, आप कहें कि आप गलत हैं, बस इतनी बात है। अब मसला ये है आमिर भाई कि यही वो होता कह रहे हैं कि है आप कि कहीं आप फतवे गलत का हैं। जी जिया रसूल भाई, मसला ये होगा कि इस फतवे का जो गलत नतीजा निकाला गया है, इसको जब लोगों के सामने पेश किया जाएगा तो लोगों में क्या इश्तिआल अंगेजी पैदा होगी कि ये वहाबियों का अकीदा है। बस तो रहीम वहाबियों भाई की है ना। एक ये बात भी है, दूसरी बात ये भी है। हाँ। गलत है ये। नहीं वो तो अमन नजीर भाई कह रहे हैं कि गलत है। दूसरी एक ये भी है, नहीं, दूसरा ये भी है कि ये यही मैं कह रहा हूँ पीर कि आसमानी इन भाई बारी नहीं बता रहे वाजे। नहीं, उन्होंने तो बता दिया ना। गोल मोल जवाब दे रहे हैं। पीरस्तानी भाई उस फतवे को भी दुरुस्त समझकर बयान नहीं कर रहे। मैंने 3 दफा 4 दफा ये सुना भी है, पढ़ा भी है खुद। उस फतवे को भी सही समझ नहीं, उसका जोहर सही निकाल नहीं पा रहे। और जो अगर अपने तौर पर वो कहते हैं कि मैं इन फतवों दोनों से ये निकालता हूँ कि कह सकते हैं, तो गलत कहते हैं। अच्छा आमिर भाई ये रजा खानियों का क्या फतवा है? आपने पेश नहीं किया अभी तक। चलो ठीक है, अब दोनों को मैंने तो पहले ही कहा था ना कि आप दोनों नीचे बैठ के मेरा भाषण सुन लें और जाके अपनी अपनी ब्राड में अपना किताबां खोलो तो भाई जाके शुरू हो अभी जाएगा। यहाँ पे किसी ने कहा वहाबियों का ये फतवा है, आपको बुरा नहीं लगा? मैंने कहा रजा खानियों का फतवा। ये और रहील है, पता नहीं क्या नाम है उनका ऊपर से। नहीं, राहील भाई ने एक सवाल किया है कि लोग इस तरह कहेंगे। मैंने हाँ, कहा ठीक जो है। ये कहेगा उसको जी। जवाब ये दिया जाएगा कि ये सिर्फ पीरस्तानी भाई का फहम है। जो कि हाँ ठीक नहीं है, मैं अभी ये सवाल कर रहा हूँ कि इसमें रजा खानियों का क्या फतवा है, वो आप पेश नहीं कर रहे। जी पीर आसकानी भाई कोई फतवा पूछे, मुफ्ती जो है एवी अन्नेवा तो बैठ के फतवे नहीं देता। अगर जी। किसी ने इमाम अहमद रजा खान साहब से पूछा है कि भाई किसी भी रंग में खुद को खुदा का बेटा कहा जा सकता है या नहीं, और उन्होंने अगर ये फतवा दिया हो कि जी इस रंग में सिवाय इसके कि जो जायज़ यहाँ पे बात लिखी हुई है उसको तो हम ऑलरेडी समझते हैं कि वो जायज़ है। कि जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि भाई आपकी कुतुब में लिखा हुआ है कि आम बंदे भी खुदा के बेटे हैं, तो इस तरीके से तो आपकी कुतुब के हिसाब से मैं भी खुदा का बेटा कहता हूँ। ये एक वाहद रास्ता है। इसके अलावा अगर इमाम अमर रजा खान साहब ने भी कहा हो कि भाई नीले पीले रंग में मजाजी रंग में खुद को खुदा का बेटा कहा जा सकता है, मैं उनको भी नहीं मानूंगा। मैं आपकी तरफ बैठ के फतवा की तवीलें करूंगा। लेकिन अगर किसी ने फतवा पूछा ही नहीं, बात को खत्म कर दें। अच्छा नहीं, आखिरी बात वो फतवा कहाँ है? आप लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं कहाँ है, क्या दलीलें हैं, किधर है? उसको पेश करने से आप लोग क्यों जी कासिर वो हैं? कुरान पाक में फतवा लिखा हुआ है।
हाँ हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ फतवा, आप म्यूट रखें, मैं 10 मिनट में आता हूँ, मैंने दिहाड़ी भी लगानी है ना, मजदूरी भी करनी जी ठीक है मुझे वो दे देना मेरे पर्सनल में, मैंने पहले भी आपको कहा है, ताकि उसको पढ़ लिया जाए, देखा जाए। पीर साहब ने भी ये बात की वैसे कि मुझे गैर मुकल्लद की आज वैसे सही समझ आई है कि गैर मुकल्लद का मतलब वो होता है कि कुरान हदीस की तकलीद नहीं करनी, फतवे की तकलीद करनी। देखें जो जाहिल का मुकल्लद होता है इसी तरह की बात करता है, क्योंकि मुकल्लद होता ही जाहिल है, इसलिए जहालत दिखाता है। जी भाई ज़िया भाई इन्होंने अगले दिन माना था कि लजना दाइमा ने मिर्ज़ा कादियानी पर फतवा गलत लगाया हुआ है, जी लेकिन उसकी वजह क्या बोल रहे थे, गलत क्यों है, कि उनको गाइड गलत किया गया था। अब्दुल्ला भाई ना भाई जान, अगर जो गलत कर लेने दो मुकल्लद अगर जाहिल बिलाल नहीं भाई, गलत कर होता लेने दो। तो वो क्यों झूठ बोलता? वो झूठ के अपने इसलिए वो झूठा है कि नहीं, मैंने तो पीर साहब आपको कहा है आप लजना दाइमा का इधर भाई सब चुप कौन करें, म्यूट कर रहा है? सब चुप करें, सब चुप करें। बिलाल भाई गलत कर लेने दो। नहीं कोई पुरानी बात नहीं, कोई पुरानी बात नहीं करनी यहाँ पे। नहीं पुरानी नहीं कर लेता हूँ मैं कह रहा हूँ कि पीर साहब मुझे लजना दाइमा का एड्रेस दे दे, मैं उनके सामने जाके बात कर लेता हूँ। अली हक भाई बात करें। तुम्हें क्या समझ आएगा, तो तकलीद कर बस। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तकलील आपने तो रब बना लिया लजना दाइमा को। ओ यार एक मिनट अब्दुल्ला भाई, आपने अहमद रजा को अपना रब बनाया, इसमें क्या है? पीर साहब खुदा का वास्ता है छोड़ दिया करें, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बेटियों जैसे हैं, खुदा का वास्ता है। बच्चों को मारना भी पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है। से मारा करें, प्यार से हमें समझाया करें, इस तरह हमारे ऊपर कुफर के फतवे ना लगा दिया करें। खुदा का वास्ता है आपको, हम आपको अपना उस्ताद समझते हैं ना, ऐसा किया करें, खुदा का वास्ता है। अली भाई ठीक है, आप बात करें, मैं खामोश हूँ। खुदा का वास्ता है। अगर हम आपके पास बैठते हैं, आपसे सुनते हैं, आपको समझते हैं, तो आपको उस्ताद मोहतरम समझते हैं, आपको बड़ा समझते हैं, तो आपके पास आगे चले। छोड़े इस बात को। डॉक्टर साहब नहीं, एक इसी हवाले से एक डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। डॉक्टर साहब किसी ने अपनी बुक्स में क्या भी लिखा हो, लेकिन कुरान जो सूरत इखलास है वो उसका क्या करना है हमने? लजना दाइमा से पूछना पड़ेगा क्या करना। वो क्यों उससे पूछना पड़ेगा? इब्नुल्लाह की नफी में कुरान करीम भरा पड़ा है, ठीक है, ये कह रहे हैं उस स्पेसिफिक आयत में नहीं लिखा हुआ जी, ये तो सेम वो तो, ये तो जुल्म है, सरी जुल्म है कुरान करीम के साथ। दिल पे इस पे बात हो चुकी है, अभी आमिर भाई आएंगे तो बात होगी मजीद, अभी इस पे कोई बात नहीं होनी, उन्होंने मना किया हुआ, सो प्लीज डोंट टॉक अबाउट दिस। लाल भाई थोड़ी आवाज ही नहीं आ रही। मैंने कहा इस पे बात हो चुकी है, आमिर भाई मना करके गए हैं कि अब इस पे बात ना करें, तो मेरा ख्याल है दिस टॉपिक। ठीक भाई, अगर आज ये 1400 साल बाद आके बात ये ठीक हो सकती है, तो शेख इब्ने अरबी और मंसूर हल्लाज पर फिर क्यों फतवे लगे थे जी? वो भी तो सारी बात मजाज में कर रहे थे, या वो गलत है या लजना दाइमा गलत है। हाँ सोनम बिलाल भाई, फिर ते मौलाना इसाक भी ठीक हो गया। वो सारे लोग तो मजाज सी गल्लां कर रहे ने, वो केड़ा असली गल्लां कर रहे ने। मौलाना इसाक तो लेजेंड है, लेजेंड, वन मैन आर्मी। इन्होंने दसना पवेगा भाई, यहाँ ते वो वाले उलमा गलत से, जो कुरान औलाद उलमा ने, ते या फिर लजना दाइमा गलत है, या फिर पीर साहब उस फतवे नु गलत इंटरप्ट कर रहे ने, इंटरप्रेट कर रहे ने। हाँ मैं ते क्या मैनू दियो लजना दाइमा दा, मैं हुणे टुर जाना है, सुबह जुम्मा है, आज उंज भी वेला है मैं।
میں ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਜਨਤ ਦਾਇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो रही, इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं ना आमिर भाई, मसला ये है कि इसकी गलत इंटरप्रिटेशन के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी के जो इल्हाम है, जो असल बात है, उसका जवाब बन रहा है ना, बनाने की कोशिश की जा रही है। रहील भाई वो बात भी ठीक है, लेकिन सिर्फ फतवा बयान करना, उस पर बंदे को गलत फहमी हो जाना बात है, ये कंसिडरेबल बात है। लेकिन इसमें फिर कुरान करीम की दलील देना, फिर इसका मतलब है कि वो आदमी मुकम्मल तौर पर मोटिवेट हो चुका है इस बात पर कि बंदा अपने आप को मजाजी बेटा कह सकता है, फिर गुंजाइश बाकी यही नहीं बात है। जब आप इस अकीदे के ऊपर आ गए हैं तो फिर आगे जो इल्हामात वगैरह हैं, ये तो निरी गलत बात है जो आप कर रहे हैं ना, कि इस तरह से ऐसे किसी को गुंजाइश देना कि कोई बंदा अकीदतन अपने आप को खुदा का बेटा इस्तिआरे के रंग में या मुजाजी रंग में कह सकता है, ये तो निरी गलत बात है और इसकी कोई दलील नहीं है। ज़रा सुने, मैं आपको पीरस खानी भाई मौजूद हैं आप? सुन रहा हूँ आपको। मैं आपको ना दिखाने लगा हूँ वो एक तो फतवा मौलाना सनाउल अमृतसरी को। मेरे पर्सनल में दे दें। साथी हमारे क्या, हाँ दें, पर्सनल में दे दें मुझे आमिर भाई। मैं देता हूँ एक सेकंड होल्ड। तो मेरे सामने ये बुल्फा मौलाना सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह का रिसाला अमृतसर खुला हुआ है। वो फरमाते हैं कि इससे बढ़कर क्या गजब होगा कि मिर्जा कादियानी खुदा ताला के लिए औलाद साबित करते हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वकाल इत्तखज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुकुम शयअन इद्दा तकादु अस्समावातु यतफत्तरुन मिन्हु व तशक्कुल अर्ज़ व तख़िरुल जिबालु हत्ता अन दाअु अर्रहमान वलदा वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा। इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है। लक़द जिअतुम शयअन इद्दा, तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। तकादु अस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्ज़ु। अल-मुख्तसर ये है कि ये जो मौलाना सनाउल अमृतसरी का फतवा है, ये उन्होंने इसी बात पर दिया है कि जो मिर्ज़ा कादियानी खुद को खुदा का बेटा कहता है, वो कहते हैं कि गज़ब इस पर, इससे बढ़कर क्या गज़ब होगा कि मिर्ज़ा कादियानी खुदा ताला के लिए औलाद साबित करते हुए कहते हैं कि मैं खुदा की अंतमिनी बेमंज़लत औलाद ही, मैं खुदा की औलाद के दर्जे पर हूँ या खुदा के बेटे के दर्जे। एक दूसरी जगह अंतमिनी बेमंज़लत वलद ही, इसी पर उन्होंने फतवा दिया है, जिस पर मिर्ज़ा कादियानी ने ये टेप लगाई हुई है, पेंट चढ़ाया हुआ है कि इस्तिआरे के रंग में कहा है अल्लाह ताला ने मुझे, इसी पर उन्होंने फतवा दिया। ये तो हो गया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का, मैं इसको सेंड कर देता हूँ आपको, इसका स्कैन भी। लेकिन जो दूसरे उलमा ने पहले 1891 में फतवा दिया, वो भी इन्हीं आयात को लेकर, इन्हीं आयात को पेश करके रद्द किया है कि ये खुद को खुदा का बेटा इस्तिआरे के रंग में भी नहीं कह सकता। आमिर भाई, ये जो सनाउल्लाह साहब का आप फतवा सुना रहे हैं, ये फतवा तो दुरुस्त नहीं लगता कि क्या कुरान पाक में कहीं है कि इस्तारा के रंग में कहना भी कुफर है? नहीं, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है भाईजान। इस्तिआरा, मुजाज, बरूज और ये गैर, ये तो अपनी तमसीलात और अपनी तशबीहात है ना। कुरान ने इसकी मुतलकन नफी किया है, इसको मुरद किया, रद्द किया है कि जमीन फट जाएगी, आसमान शक हो जाएगा इन लफ्जों से जो तुम कह रहे हो, खुदा का बेटा कह रहे हो। ये लफ्ज कहने के बाद अल्लाह ताला किसी को इल्हाम करेगा तुम मुझसे मेरे बेटे के दर्जे पर है, मेरी औलाद के दर्जे पर है? कुफर है, कुरान का इनकार है सीधा सीधा। ये कहना चाहते हैं कि कुफर है, बिल्कुल कुफर है, कोई शक नहीं।
नहीं, ये सारी बातें गुस्सा चढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं, ना कहें। ये सारी बातें आप गुस्सा दिलाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैंने तो अपनी बात की। गुस्से वाली कौन सी बात है? मुझे गुस्सा आ रहा है ना इस तरह की, भाई वो मस्खरा कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं कि मस्खरा बना हुआ है संजीदा नहीं है, तो उसको मस्खरा बनने दीजिए। मस्खरा तो आपने किया ना आमिर भाई, अगर किसी चीज का जिक्र ना हो तो क्या वो उस चीज की इजाजत है, वो कर लेनी चाहिए भाई। बात फिर लोग पूछेंगे आप कि जितना भी मसखरापन इख्तियार करेंगे वो तो आपका हल्कापन नजर आएगा ना, उससे मुझे क्या लगता है? आमिर भाई इसको इधर ही खत्म करें, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हाँ ठीक है, कि फतवा कुछ और कह रहा है और पीर साहब कुछ और इस्तदलाल ले रहे हैं, तो पीर साहब मैं ठीक इतना नहीं ही कह रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आमिर भाई ये कह रहे हैं कि इससे गुस्सा आएगा, अल्लाह जानता है मुझे इससे गुस्सा नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें आपका हल्कापन नजर आएगा, मुझे इसमें गुस्से करने की क्या जरूरत है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है आपका गुस्सा, आपने ब्राड लगा के मिर्जइयों को बिठा के काफर काफर के नारे लगवाए, खुद भी मुशरिक कह रहे थे, वो क्या था? वो आपको मालूम नहीं है। जब ज़िया साहब ने मुझे एक रोड पे, इनसे तो उम्र बाप अच्छी है, वो कुरान करीम के साथ जुल्म नहीं करते, एक नबूवत वालों को गालियां देती। यूसुफी साहब आपको मालूम नहीं है, 3 दिन से अब तो देने देना, ये तो तरीका नहीं है ना। छोड़ देना भैया, यूसुफी का जवाब तो देने दें, कोई गलत बात नहीं है। मैं दे देता हूँ ना जवाब, मैं दे देता हूँ यूसुफी को जवाब। यूसुफी भाई और दूसरे ये भी बता दें कि मैंने क्यों कहा थी। सिर्फ शाह शूटर ने ये कहा था कि लजना दायमा के कौन से हिस्से से तल्लक है वो बता दें, इन्होंने मुझे गालियां दी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे काफिर लिखा और आपने लजना दायमा को काफिर कहा, तब मैंने आपको गालियां दी। मैंने कहा तिरस्कानी भाई, ये बात मैं कर चुका हूँ अपने भाषण में कि अगर कोई बंदा नहीं, अब्दुल्ला झूठ क्यों बोल रहे हैं, सही बात बताए ना। मुझे काफिर कोई कहता है, मुझे कोई काफिर कहता है तो कहने दें, वो खुद स्लिपरी ग्राउंड पे जाके खड़ा हो गया, जवाब दे, वो है। लेकिन जो जवाब देता है उस पे क्या मलामत है, ये भी तो बताओ। आपका ये तरीका है, ठीक है, माफ करें, ज्यादा अच्छा। नहीं, क्या कहेंगे उसको? नहीं, मैं कहूंगा तुम्हारा बाप काफिर है, ये जवाब है। हाँ, मेरा जवाब है ये उसको। नहीं, गलत भी कहें आप मुझे। इन्होंने कहा तो था ठीक कि है, दरबारों से इसकी माँ ये करवा के आई, इसकी दरबारों से इसकी माँ ये करवा के आई, ये कहा है भाई। जो कबर पूछता है तो यही एक आलिम की जुबान है, कोई आलिम नहीं है ये, सवाए अरबी के इनको कुछ नहीं। आमिर भाई मेरी बात सुने, मैं आपको आसान हल बताता हूँ, पीर साहब से जान छुड़ा ले, मेहरबानी करें, इनसे जान छुड़ा ले, यही बस ठीक है, ये सबसे बेहतरीन हल यही है, इनसे जान छुड़ाएं पीर साहब से। इस मौजू पर एक फिक्रा भी इस मौजू पर किसी ने बोला तो मैं नीचे उतार दूंगा, बस खत्म हो गई बात। इतनी सी बात है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर एक बंदा है वो किसी बात को सही नहीं समझ रहा आपके मुताबिक, क्या आप उसको काफिर कहेंगे? और अगर आपने बेवकूफ़ी और जहालत कर दी, आपने उसकी तकफीर कर दी है, अपने लिए खुद गड़ा खोद के अपने लिए परेशानी पैदा कर ली, क्या वो जवाब में आपकी माँ बहन को गाली देगा? ये मुसलमान है, यही इस्लाम है आपका। खुदा का खौफ करें। एक गलत करता है, दूसरा उससे बड़ा गलत करता है, तीसरा आता है वो उससे भी बड़ी गलती करता है। खत्म नबूवत का काम सिर पे चुका हुआ है। आमिर भाई प्लीज, मुझे काफिर कहा गया नहीं, मुझे काफिर कहा गया, आप लजना दायमा को काफिर कहा गया, मुझे कह लें, आप मुझे कह लें। ला हौला वला कुव्वत फिर चुप कर दिए ना, आपको क्यों? जब उनको मैंने चुप करवा दिया तो आप भी चुप कर दो, मेहरबानी। जब सारे बंदे आपके इस रवैये से, आप सब के रवैये से, जो भी इसमें गलती करता है, पहले जो किसी को गाली देता है या उसकी तकफीर करता है, जवाबन वो उसको जो कुछ कह, दोनों के रवैये से, अब अगर सारे लोग आपके इन रवैयों से परेशान हैं तो खुदा के लिए अपने रवैयों पर गौर करें। आप अगर दीन का काम नहीं कर सकते या आपके जज्बात आपके दीन से बढ़कर हैं, आपकी जो नफ्स है उसकी शरारतें वो बेकाबू हैं, तो आपका काम ही नहीं यहाँ पर दावत व तबलीग। बहुत अफसोस होता है कि उसने मुझे काफिर कह दिया है, अब मैं उसकी माँ को मजार पे भेज कर छोड़ूंगा? कोई बात है करने वाली?
बात यह है कि मिर्जा कादियानी के इस कुफर को, इस गुस्ताखी को, जिस तरह से नसारा के इन अल्फाज को कुरान ने कोड करके कहा ना कि इतनी भारी बात इन्होंने कही है, इतनी वजनी और इतनी सख्त बात इन्होंने कही है कि आसमान फट जाएगा, जमीन शक हो जाएगी, अल्लाह के लिए ये औलाद मुतय्यन करते हैं। इतनी बड़ी वईद कुरान में आ जाए और बंदा कहे जी मैं इस्तियारे के रंग में कह रहा हूँ, मैं मुजाज के रंग में कह रहा हूँ, मुझे मेरे खुदा ने, वो खुदा नहीं हो सकता जिसने ये इल्हाम किया, ये खुदा का इल्हाम नहीं हो सकता, ये शैतान का इल्हाम है, क्योंकि ये शैतान के पुजारी हैं ये लोग जिन्होंने ये चीजें अपने नफ्स से घड़कर लोगों के जुम्मे। और फिर कहता क्या है, हम ऐसे मुर्शिद को और उसके मुरीदों को कुत्तों से बदतर ख्याल करते हैं जो अपने पास से पेशगोइयां घड़े और फिर उनको पूरा करने के लिए कोशिशें करे, खुद तस्लीम करता है। अब मेरे पर एतराज होता है कि तुमने महमदी बेगम के बारे में पेशगोई की और फिर उसके पूरा करने के लिए लोगों को डराया धमकाया और लालच दिया, महमदी बेगम के मामू को पैसे ऑफर किए, इसको पैसे दे के रिश्ता ले दो मुझे, और खुद अपना फतवा दिया हुआ है कि मैं ऐसे मुर्शिद को, मुरीद को कुत्तों से बेहतर ख्याल करता हूं। तो ये बंदा, इसके ये इल्हामात, ये सारे शैतानी हैं। और ये कुफर भी छोटी लफ्ज है, ये तो कुफर से भी आगे निकला हुआ है, जिंदीक है, और बदतरीन किस्म ये जिंदीकियत होती है। एक बंदा है वो सीधा इनकार करता है, कुफर है, वो इससे बेहतर है जो ये जिंदगियत कर रहा है और खुदा का नाम लेकर इफ्तरा कर करके कहता है मुझे खुदा ने इस्तियारे के रंग में बेटा कहा। उसको खुदा गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहे हैं आप अमर भाई। हैं? खुदा ने नहीं कहा, मैंने कहा गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहे हैं। खुदा ने नहीं कहा, इसको शैतान ने ये किया है इल्हाम, इसको शैतान ने कान में फूंक मारी है कि तू इस्तियारे के रंग में मेरे बेटे के दर्जे पर है, मेरी औलाद के दर्जे पर। अल्लाह कैसे कह सकता है? अल्लाह ताला तो कुरान भरा हुआ है सारा, इस पर वईदे नाज़िल करता है कि अल्लाह का ना कोई बेटा है ना कोई बाप है। तुम जो कलमे उसकी तरफ कह रहे हो, अल्लाह इससे पाक है, अल्लाह इससे पाक है। और ये कहे कि इस्तियारे के रंग में तो जायज है। खौफ खुदा कर, ये बात आपकी देखें तहफ़्फ़ुज़ किसको दे रही है? आपकी कोई मामूली सा गलत लफ्ज या गलत फहम या किसी बात का गलत समझ तहफ़्फ़ुज़ किसको दे रही है? कुफर को, शातमियत को, शिरक को। जबकि उलमा ने भी साफ कहा है कि इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसी फतवा में लिखा हुआ ना कि इन लफ्जों को आम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कहता है मुझे एजाज बख्शा गया, क्यों? ईसाइयों को पता चले कि मुसलमानों में भी एक ऐसा हुआ है जो उससे बढ़कर है, ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर है। ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़ने के ज़ोम में ये अपने ऊपर इल्हाम नाज़िल कर रहे हैं। कोई इसकी गुंजाइश ही नहीं है। वो तो जो उन्होंने बात कही है नसारा के बारे में, या अगर वो सीधा ये भी कह देते ना कि मुजाहिद, तो हम तो उसको भी गलत समझते हैं। कोई आलम दीन में कि हमारे पास इतने उलमा के ये फतवे मौजूद है और इनके लिए हमारे उलमा के सामने सीधी सूरत मौजूद है, सीधी शक्ल मौजूद है कि यहाँ मिर्जा कादियानी ने ये इल्हाम पेश किया है। लजना दायमा वालों से फतवा पूछा गया सिर्फ उस हदीस के मद्देनजर। उन्होंने जितनी बातें की हैं वो उस हदीस के पेश नजर, वो ज़ईफ रवायत है जो है उसको सामने रख के उन्होंने बातें की। लेकिन अगर उनके सामने ये फतवा रखे, मिर्जा कादियानी का ये इल्हाम रखे, वो इसको उठा के गटर में फेंकेंगे लजना दायमा वाले और कहेंगे ये लानती है, ये झूठा है, ये शैतान का पैरोकार है जिसने ये कहा कि मुझे खुदा ने ये इल्हाम किया है। जाओ सीधा इसके सामने, इनके सामने ये इबारत रख के पूछो लजना दायमा वाले, अगर उन्होंने कहा इस्तियारा के रंग में इसने कह दिया तो जायज है, मैं मेरी दाढ़ी मुंड देना आके कोई गाल करना ले। अब कोई बंदा इस मौजू पे बात ना करे, मुझे 2 मिनट नीचे उतरने को दिहाड़ी भी लगान दो, 2 मिनट नहीं होते फिर बहस शुरू हो जाती। नहीं ऐसे कहा वैसे कहा, एक दूसरे को इश्तियाल दिलाते हो फिर लड़ना शुरू कर देते हो। पहले जानबूझ के सुइयां चुभोते हो एक दूसरे को। रहील भाई आप बात करें, यूसुफ भाई आप बात करें, इस मौजू पे कोई बंदा बात ना करे। मैं आने लगा 1 मिनट। चलो जी आमिर भाई चले गए हैं तो अब शुरू हो जाओ। शहजाद खुरम साहब शुरुआत आप करें, ज्यादा बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये अमर नज़ीर सब क्या पेश करते रहते हैं आजकल रोजाना ही?
وہ پیش کر رہے تھے انتم منی بمنزلت والدی، ہاں یہ تو پیش کر رہے تھے بس۔ اس میں بمنزلہ دیکھ لیں تو سارا مفہوم پتہ چل جاتا ہے. زاہد صاحب کو پتہ چل گیا، ان کو پتہ نہیں چل رہا عامر صاحب کو. سمجھائے ذرا بے منزلہ کیا سمجھانا ہاں چاہ رہے ہیں؟ بمنزلہ کہ جیسے باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے ایسے تو مجھے پیارا ہے. اس سے یہ تو نہیں کہ مراد کہ تو میرا بیٹا ہے. یہ مراد آپ نے لینی ہے یا یہی بات وہ حضرت سب مسیح خود علیہ بتائیں گے؟ السلام نے فرمائی ہے کہ یہ ایسا ہی الہام حضرت مسیح ابن مریم کو بھی ہوا تھا جس سے نصارہ نے دھوکہ کھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں شرک کو ختم کرنا چاہتا، بتا دیا کہ یہ شرک انہوں نے کیوں کیا تھا. انتم منی بمنزلت والدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میری ان اولاد کو پہ بات کرنے دیں یار، ان کو بات کرنے شہزاد صاحب بات ہاں جی مکمل کریں. بمنزلہ اچھا نعیم بھائی السلام علیکم. نعیم بھائی السلام علیکم. بیٹا نہیں ہے. نعیم بھائی اللہ خیریت ہے؟ تعالیٰ کا تو کوئی ظاہری بیٹا نہیں ہے. اچھا آپ سے تھوڑی بات کرنی تھی، شاید میں آپ کو فون کروں لیکن ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے، میں نے بھی ابھی نکلنا ہے نماز. کبھی آپ فارغ ہوں گے؟ فارغ ہوں میں، فون نماز کے بعد سارے کوئی نہیں مر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں اجازت چاہتا ہوں، نماز کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی یوسفی صاحب، بات صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ الہام کر رہا ہے تو صاف فرمایا ہے کہ بمنزلہ کہ اولاد کی طرح. یہ اگر اللہ تعالیٰ کہ میری اولاد ہے. پہلے تو فکرہ ہی اگر سے شروع ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ الہام کرے تو انہیں اعتزاز اساں نے آکھیا جیڑا فکرہ ہی اگر تو شروع ہوئے تو میں کی جواب دوں؟ دس آپ کو میرے خیال میں کوئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. عامر نذیر صاحب آپ آدھی بات سن کے دوڑ جانے والوں میں سے ہیں کہ بات پھیلا دو. بات آپ اگر سے کیوں کہتے ہیں؟ کہیں خدا نے الہام کیا، وہ جو یہ لاش خدا کس نے کہا ہے اگر؟ میں نے تو اگر کہا ہی نہیں. آپ کو کوئی غلط سنی ہے بات. کیوں بھائی مجھے آپ نے کہا کہ اگر یہ الہام ہوا ہے تو پھر وہ اولاد کی طرح اولاد کی طرح، اولاد نہیں اولاد کی طرح. میں نے بمنزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بمنزلہ کے میں نے ہی طرح کے ہوتے ہیں. الفاظ میں بات مکمل کرے. بمنزلہ کے میں نے ہی طرح کے ہوتے ہیں کہ اولاد کی طرح ہے، یہ نہیں کہ اولاد ہے میری. تو یہ اس میں فرق کرنا سمجھیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عیال کی طرح ہے. وہاں پہ ابھی یہ لفظ ہوا ہے، استعمال ہوا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، مردود روایت ہے. چلیں ضعیف بھی مان لیں، مگر اس میں کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے یا یہ الہام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں. ہاں جی بتا دیں. چلیں جی وضاحت کر دیں. عقیدے نقل کر کے کہتے تھے کہ کون سی کسر رہ گئی تھی، وہ خدا کا بیٹا گاڑ لیا تم نے. وہ خدائی میں کون سی کسر باقی تھی، خدا کو کون سی کمی تھی کہ جو اسے جواب دیں. مرزا صاحب کہتے ہیں عیسائیوں کو ابراہیم احمدیہ میں ابھی انہوں نے یہ الہام نہیں ہوئے تھے ان کو. وہ عیسائیوں کو کہا کرتے تھے خدا کی ذات میں کون سی کمی ہے کہ بیٹا بنانا پڑ گیا خدا کو. یہ سوال میرا ہے کہ خدا کی ذات میں کون سی کمی ہے کہ اس کو اپنے بیٹے کی مثال دینی پڑ گئی ہے، پھر منزلت والا بھی کہنا پڑ گیا. کون سی کمی تھی دین میں؟ جو سوال مرزا صاحب عیسائیوں سے کر رہے تھے وہ میرا آپ سے ہے، دے جواب. ہاں جی، وہ اس لیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کا اظہار کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یقیناً کیا ہے، تو کیا اس میں یہ مراد لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ ایک آخری حد جو ہے وہ اس کی بیری کی تھی کہ جہاں سے الوہیت سٹارٹ ہوئی تھی ہے اور خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات شروع ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں تک یعنی جو پہنچے ہیں اور اس سے بھی آگے، مگر کسی نے کوئی اس سے کوئی غلط معنی نہیں لیے. یہ ایک بات کو بگاڑ کے پیش کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ اگر کہا جائے کہ یہ تو میری اولاد کی طرح ہے. کی کمی بتائیں مجھے کہ جس کی وجہ سے خدا کو بیٹا کہنا پڑ گیا، جو سوال مرزا صاحب کرسچن سے کر رہے تھے. بیٹا تو کہا ہی نہیں، میں نے کہا مجھے بیٹا کہنا پڑ گیا. کون سی کسر تھی، کون سی کمی تھی خدا کی ذات میں؟ بیٹا تو کہا ہی نہیں. یہی تو سوال ہے میرا کہ کون سی کسر کمی تھی کہ مجازی بیٹا کہنا پڑ گیا؟ مجھے یہ بتائیں. کون سا مجازی بیٹا؟ قرآن کریم تو خود کہتا ہے کہ ہر چیز جو آسمان میں ہے وہ زمین اور جو زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی. ظلالن کا وہاں پر استعمال ہوا ہے. سائے سے مراد کیا ہے؟ ذلی. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان کے سائے بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں.
جو بات میں نے پوچھی ہے نا اس کا کیوں نہیں جواب دیتے کہ صحیح خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو وہ مرزا صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ تم خدا کی ذات میں کون سی کسر تھی، کون سا عیب تھا، کون سی بات باقی رہ گئی تھی کہ بیٹا بنانا پڑ گیا خدا کو؟ میرا سوال یہ ہے کہ خدا کی ذات میں کون سی کسر تھی، کون سا عیب تھا، کون سی ایسی بات رہ گئی تھی خدا کو مجازی بیٹا کرنا پڑ گیا؟ سوال اس کا جواب دینا ہے آپ۔ جو سوال مرزا صاحب کرسچن سے کر رہے ہیں وہ میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ حقیقی مانے مجازی مانے میرا اسے غرض نہیں ہے۔ آپ جن مانوں مانتے بتائیں خدا کی ذات میں کون سی کمی تھی کہ ان مانوں میں خدا کو بیٹا کرنا پڑ گیا؟ دیکھیں جھوٹ نہ بولیں، عیسائیوں کا عقیدہ